बाकी सब रिलीजियस और कल्चरल कार्यों को मैनेज करने के लिए पूरा कंट्रोल होता था। धीरे धीरे भूटान के बाकी सब जगहों को आपस में जोड़ा गया और अलग अलग जगहों पे जोंग जो बने थे उनके द्वारा एक यूनिफाइड भूटान की रचना हुई। So there is a four paintings, four corner में होता है, at the entrance होता है, entrance में, okay? So those are the four protector कहते हैं हम लोग, four gardens of Buddhism, okay? So if you look on the four corner, बाद में जाते समय, okay? अभी इधर आया है हम लोग. So you can see the painting here, the old man, okay? So it is said he is an old Chinese Buddhist master here कहते हैं, and it is said he stayed more than 500 years. So we believe, you know, like if we make a painting of this old man in our house, we will be blessed with a long life. Okay? Chinese Buddhist master here कहते हैं, okay? Like God of longevity जैसा मानते हैं हम लोग उसको. Okay? And at the back, you can see the four different animals. Okay? So on the top, you will see the bird, rabbit, elephant, a monkey, and the elephant. So these are the four different animals. Simple में बताए तो जैसा unity, okay? That we need to have a cooperation. Like whether आप लोग किधर से भी हो, north, south, किधर से भी हो, so if you come together, you know everything is successful. Okay, unity here. So you can see, like in some painting, you will see the monkey. They will be sharing the fruits from the tree. Cooperation among them. Okay, unity here. Yes. Okay. So this side is a child. मुझे ये देख रहे हो the white scarf that I'm wearing, so we call it kabni. So when we go inside the zone, किला में जाते समय
साइन ऑफ रेस्पेक्ट जैसे हम लोग को पहनना पड़ता है। एंड पोस्ट भी इसमें डिफर करते हैं कलर, जैसे यू हैव सीन राइट एट द बुद्धा पॉइंट किंग का येलो था। ओके, सो हम लोग कॉमन के लिए वी हैव अ व्हाइट वन, मॉन्क के लिए रेड होता है। ओके, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का ब्लू होता है, ऐसा करके होता है। पोस्ट में डिफर होता है कलर। फॉर द कॉमन हम लोग के लिए व्हाइट होता है। So Punakha Zong, okay, so this is the most beautiful zong in the country and the second largest, we say, okay, second largest zong in the country kehte hain. So Punakha Zong, it was built in the year 1637, okay, and completed in the year 1638, 1 year में complete हुआ कहते हैं, okay, and नीचे से आते समय आप लोग ने जो सीढ़ी देखा था 3, so the center one it's closed, बीच का जो था middle का वो close है, that one at present it's only for the royal family and the chief abbot जो हम लोग का धर्म राजा है उसके लिए, साइड हम लोग के लिए, okay, but in the olden days, okay, so the center one it was the preference given to the leader from the south actually. So मैंने आप लोग को कहा था before the kingship started in the country it was led by the different local leaders. So from the central Bhutan Tongsa Penlop, western Bhutan Paro Penlop, southern Bhutan Taka Penlop करके वो 3 बहुत powerful leaders थे, okay. So the preference it was given to the leader from the south. It is said he used to bring a lot of tax. So during the time of third king, इधर से Thimphu shift हुआ है. But for the monastic body, for the chief abbot जो धर्म राजा, उसके लिए Punakha is a winter capital. Thimphu summer capital है, क्योंकि winter में इधर weather अच्छा रहता है. So Thimphu it's very cold. So with the monk, you know, इधर shift करते हैं 6 month के लिए. And जैसे summer start होता है 6 month के लिए वापस Thimphu में shift होता है. So for the Dharma Guru, Dharma Raja के लिए Punakha is a winter capital, okay, summer capital Thimphu है उसके लिए. So you can see the tree here. So this tree was gifted by the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. So when he visited Bhutan, so during that time Punakha was the old capital. So उसने इधर visit किया था, so उसने gift किया था, okay, उसका ये tree है, okay. So as I told you, so in the olden days fort, okay, it was used for the defense, but अभी present में it's divided into 2. So Bhutan we have a 20 district में zong है हम लोग का. So उसका function जो होता है अभी present में half part administrative होता है, half part monks के लिए use करती है. Clear? Okay. So nowadays also, you know, जब भी हम लोग का royal का कुछ भी function होता है, like royal wedding, coronation ऐसा कुछ भी होने से, first they will do it here in Punakha. After here only Thimphu करते हैं, because Punakha was the old capital. Okay. See here, okay. So like a snack जैसा करके देख रहे हैं ना, नाक जैसा करके. So we say, okay, we say, you know, all the land belongs to the serpents actually. नागास को belong करती है. So before the construction of any house, temple, fort, okay. So we do a special like पूजा करते हैं हम लोग. So that's a kind of a permission, you know, ask करने के लिए. And then उसके बाद only we start the construction. And after the completing the construction complete होने के बाद, उसके लिए हम दूसरा सा एक मंदिर जैसा सेटअप करके देते हैं, okay. So zone का इधर है ये. So like जो हम लोग ने कल टेंपल देखा था चंगंग खलाखंग, the nunnery, I mean like the baby temple जो, so वहाँ पर भी ऐसे ही है actually. So this one temple separately नागास को dedicate करके build किया है, okay. So if you look here on this side, okay, you will find a different shape of stones. So ये like आप लोग का शिवलिंग्स होता है ना, like नाग का ये ऐसे बिलीव करते हैं हम लोग, okay. Different shape पत्थर है, वो लोग का पैलेस जैसा मानते हैं हम लोग. So we take it outside, no? इसी जोंग के अंदर एक बुद्धिस्ट टेंपल भी है और जिसके अंदर हमने जा कर के
थोड़ी देर के लिए हमने पूजा भी की और उनके जो बुद्धिस्ट रिचुअल्स में हमने पार्टिसिपेट भी किया, क्योंकि उस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम कुछ फ़ोटो और वीडियो नहीं ले पाए। इस जोंग के एक हिस्से में जाना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उधर से रन होती है और जो अथॉरिटीज़ के सीनियर लोग हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। पुनाखा जोंग का निर्माण 1637 में हुआ था और फिर अगले 10-15 साल में अलग अलग एरियाज़ में और कई जोंग्स भी तैयार हुए। यूं तो छोटे बड़े बहुत सारे जोंग्स भूटान में हैं और पहले उसमें सब बुद्धिस्ट जो लोग थे सीनियर वो वहाँ पर बैठते थे, लेकिन 5 बड़े जोंग्स के द्वारा भूटान की जो पूरा एरिया है उसको मैनेज किया जाता था। और सन 2008 में मोनार्की से डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ये भूटान कन्वर्ट हुआ, तो उसके बाद कुछ पावर्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सौंप दी गई, लेकिन अभी भी काफ़ी फंक्शंस इन्हीं जोंग्स के द्वारा ही होते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो भूटान के पहले किंग थे वो भी 1907 में इसी जोंग में ही उनको किंग का बर्थ प्लेस ऑफ मोनार्की जो किंगडम की शुरुआत हुई वो भी यहीं जोंग से हुई थी और बहुत सालों तक इन्हीं जोंग के द्वारा ही पूरा भूटान का मैनेजमेंट होता था। हमको पूरे जोंग में भूटानीज आर्किटेक्चर, उनकी कलाकृतियाँ और उनके जो बुद्धिस्ट वे ऑफ लिविंग है बहुत ही उसका स्ट्रॉन्ग हमको इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। यूं तो पूरे भूटान में बुद्धिस्ट कल्चर हर जगह दिखता है, लेकिन क्योंकि जोंग में ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है। जोंग के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ हमको दिखाई दिया और ऐसा हमको ज्ञात हुआ कि इस पेड़ के नीचे बैठ करके ही बहुत सारे मॉन्क्स बुद्धिस्ट लोग जो है वो अपनी साधना तपस्या किया करते थे और
अब भी बहुत सारे कल्चरल और रिलीजियस फंक्शंस यहाँ पर होते हैं, हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि इस जोंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम आप तक पहुंचाएं, और यहाँ का जो वीडियो है पुनाखा जोंग का, वो आपको अच्छी तरह से हम शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे भूटान यात्रा के दौरान एक और साइट सीइंग वीडियो के साथ।